suspend the rule and go straight, because otherwise the rules don't provide for us for a bill that has been considered already in committee and to be brought on the floor. So if you allow me, I will read it out, please. Thank you. So I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 122 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the bill further to amend the National Assembly Secretariat Employees Act 2018. जी मिनिस्टर साहब। जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, नवीद कमर साहब ने भी कहा कि अगर आप एक नज़र डालें बिल पे तो इसमें आपने सिविल सर्वेंट जो एक्ट है उसकी प्रोविजंस को अडॉप्ट किया है। बिल ये कहता है कि ग्रेड 15 तक अगर आपने कोई भर्ती करनी है असेंबली के सेक्रेटेरिएट में तो आप एडवर्टाइजमेंट देंगे और ओपन कंपटीशन के ज़रिए एक सिलेक्शन कमेटी उसको अपॉइंट करेगी, सिर्फ स्पीकर ऑफिस अपॉइंट नहीं करेगा। बिल ये कहता है कि स्केल 16 से ऊपर जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन करेगी और अगर किसी वजह से वो नहीं करते एक लंबे अरसे के लिए तो फिर आपका डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी करेगी। बिल ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ जो हैं असम्बली में वो असम्बली के अरकान के तनासुब के मुताबिक हो, ये ना हो कि अरकान तो 300 हैं और स्टाफर्स जो हैं वो 2000 हैं। बिल ये कहता है कि आप जो डेपुटेशंस की भी एक पॉलिसी हो, ये नहीं है कि पसंद नापसंद पे। तो मैं बड़े सर खुले दिल के साथ ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कंसर्न डिपार्टमेंट्स की तरफ से और अपने तरफ से मैं मूवर्स को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने ये एफ़र्ट की है, क्योंकि पार्लियामान का मामला है। सरकार इसमें आम तौर पे बिल्कुल एक तरफ होती है और ये आपकी जो स्पेशल स्टेटस है नेशनल असम्बली का उसको सामने रखते हुए ये एफ़र्ट स्पीकर चेंबर से और मोअज़्ज़ज़ अरकान की तरफ से आनी थी। सर, आई फुली सपोर्ट एंड एंडोर्स दीज अमेंडमेंट्स। Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 122 of the said rule be dispensed with in order to take into consideration the bill further to amend the National Assembly Secretariat Employment Act 2018, the National Assembly Secretariat Employees Amendment Bill 2024. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 30, Sayyid Naveed Qamar Sahab. I beg to move that the bill further to amend the National Assembly Secretariat Employees Act 2018, the National Assembly Secretariat Employees Amendment Bill 2024, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. The question is that the bill further to amend the National Assembly Secretariat Employees Act 2018, the National Assembly Secretariat Employees Amendment Bill 2024 be taken into consideration at once. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 to 8. The question is that clauses 2 to 8 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 to 8 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that the clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. Item number 31, Sayyid Naveed Qamar Sahab. So I move that the bill further to amend the National Assembly Secretariat Employees Act 2018, the National Assembly Secretariat Employees Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. The question is that the bill further to amend the National Assembly Secretariat Employees
Act 2018, the National Assembly Secretariat Employees Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 32. Sheikh Aftab Ahmed Saab. शेख आफ्ताब अहमद साहब, आप अपनी सीट पे जाएं. आप शेख साहब पीछे है, आपकी सीट है 2 रोज पीछे. सर ये मेरी तरफ से इन्होंने खुद ही डाला है, मेरे इल्म में नहीं, तो टाइम दे दें तो कल मैं इस पर जो है रिक्वेस्ट कर दूंगा जी. अच्छा ठीक है, इसको डेफर कर देते हैं. जी आप डेफर कर दें जी, तो मैं इस पर ब्रीफ कर देता हूँ. जी आइटम नंबर 34, मिस आलिया कामरान. जी मोहतरम शुक्रिया. सर, आई विश टू मूव द बिल to constitute the Pakistan Animal Science Council in Pakistan, the Pakistan Animal Science Council Bill 2024 as passed by the Senate be taken into consideration at once. राना तनवीर साहब का माइक खोले. मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी. नहीं एनिमल नहीं सर, ये अपोज तो नहीं, मैं इसको कहता हूँ कमेटी में आप रेफ़र कर दें ताकि वहाँ पे इसको देख लेंगे हम. जी जी अमेंडमेंट मूव करें. मैंने बिल्कुल सेनेट से पास हुआ है, लेकिन मैंने देखा है इसको, इसमें कुछ चीज़ें हैं मुझे इससे प्रिंसिपली ये ठीक है. मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, मुझे उससे कोई नहीं, लेकिन ये रेफ़र करें, 1-2 चीज़ें हमने उसको देखना है दोबारा. और गवर्नमेंट से ये वेट भी नहीं हुआ, सीधा उधर आया था प्राइवेट मेंबर्स बिल के तौर पे सेनेट में. वहाँ से पास हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने भी नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है इसको. और उसमें कुछ 1-2 चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपने दोबारा इसको अमेंडमेंट मूव करें ना जी. अमेंडमेंट मूव करें. नो नवीद कुमार साहब जी. The rule calls for every bill that is introduced to be sent to the committee. This is not the stage to move an amendment. The amendments could be moved in committee and then the bill may be brought back to the assembly for passage. So, जी मिनिस्टर लॉ. Sir, this bill has been passed by Senate. So the rules framed by National Assembly say that ordinarily such bills are to be passed in the House unless until some reasons are assigned that the matter be referred to committee ताकि वो उसको एग्जामिन कर लें. आम तौर पे हम इसे ले जाते हैं. मिनिस्टर कंसर्न ने कहा कि बिल से मुझे असूली तौर पे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो विच नीड इम्प्रूवमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट और लॉ मिनिस्ट्री की वेटिंग नहीं है इसमें. प्रीवियस जब पैसेज हुआ है वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ भी पूरी करा लेंगे. वो इस बिल को इस वजह से रेफ़र करवा रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी को. मेरे ख्याल में मूवर के भी ये चीज़ हक में है. अच्छी लेजिस्लेशन बने, काउंसिल क्रिएट हो रही है, तो ये कन्फ्यूजन थी सर. ये राना तनवीर साहब का माइक. रूल्स की जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल नवीद साहब ठीक कहते हैं, लेकिन जो लॉ मिनिस्टर ने बात की बिल्कुल ये बात ठीक है कि इसमें प्रिंसिपली यस, लेकिन ये अच्छी है, हम काउंसिल बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके 1-2 चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा. तो आई मूव, मेरी बात सुन लेना. ये ऐसा कोई सेनेट से पास हुआ कोई सहीफा तो नहीं है. मैंने इसको यहाँ संभली है, इसको हमने दोबारा देखना है. और स्टैंडिंग कमेटी यहाँ की स्टैंडिंग कमेटी है, तो मैं मेरा एक मूव करता हूँ अमेंडमेंट इसमें, अगर आप इजाज़त दें जी करें. आई मूव एन अमेंडमेंट इन द मोशन टू सेंड दिस बिल टू द स्टैंडिंग कमेटी. Now I put the amendment to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no.
I think the ayes have, and consequently amendment is adopted. Bill is referred to the committee. ये बिजनेस ले रहे हैं, इसके बाद आपको इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं? ये बिजनेस कर लें असद कैसर साहब, उसके बाद आपको देते हैं टाइम। जी जी, आलिया कामरान साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से सबने यहाँ पे माना कि ये इस बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है जो पहले मौजूद नहीं थी, और ये बिल्कुल उसी तरह बार काउंसिल्स की तरह होगी, इंजीनियरिंग काउंसिल की तरह हो गई, और सर जिस डेंटल काउंसिल है बिल्कुल उस तरह की एक काउंसिल है बनने जा रही है। और लाइफ स्टॉक आजकल की ज़रूरत के हवाले से बहुत एक बड़ा हमारे लिए जो है वो है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है इस काउंसिल का होना। तो मेरे ख्याल में इसको, क्योंकि ये सेनेट से पास हो के आया और उस वक्त भी हुकूमत ने इसको अपोज नहीं किया, तो इस मरहले के ऊपर सर इसको पास हो जाना चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर उसको देख लीजिए, बाद में अगर कोई चेंजेस हुई तो उसको सर उसको अमेंड कर लीजिएगा, क्योंकि सर ये फिर कमेटी में जाएगा। और सर एक हाउस ने इसको पास किया, सर रूल्स तो यही कह रहे हैं। वो हाउस ने फैसला कर दिया है, उस पर वोटिंग हो गई है। आपने वोटिंग तशरीफ रखें, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है जी। शाहजिया मरी साहब इस पे बात करना चाह रहे हैं? हाँ, इसी पे सर बात ये नहीं है, ऑनरेबल मेंबर का ये बिल्कुल राइट है कि वो सेनेट से पास हुआ बिल यहाँ लाएं, जो एक प्रोसेस है, बट द थिंग इज इट्स द प्रेरोगेटिव ऑफ दिस हाउस एंड द राइट ऑफ दिस हाउस टू आल्सो लेजिस्लेट। एनीथिंग दैट कम्स टू अस फ्रॉम सेनेट डज नॉट मीन दैट वी हैव टू पास इट, वी आल्सो हैव अ लीगल माइंड टू अप्लाई टू इट। सो आई एग्री विद योर डिसीजन टू सेंड इट टू द कमिटी एंड आई रिस्पेक्ट दैट। कतई नज़र इसके कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, बिल्कुल होगी, वी आर नॉट डिसएग्रीइंग विद दैट, बट prerogative of this house has to be maintained. Thank you, sir. Thank you. Item number 36, Zahra Wadood Fatmi Sahaba. Thank you, Speaker Sahab. I would like to move that the bill to establish the Nippon Institute of Advanced Sciences, the Nippon Institute of Advanced Sciences Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. जी, मिनिस्टर लॉ। मिनिस्टर कंसर्न अभी थे यहाँ पे, लेकिन मुझे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यही हैं कि इनकी अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो अपोजिशन की इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं मुझे जी, बिकॉज कमेटी ने देखा होगा वो जो 5-6 यार्ड स्टिक्स जो मैंने पहले अर्ज़ की हैं वो अगर पूरी हैं तो इसी वजह से कमेटी ने किया है। सो सिंस देयर इज़ नो रिटन अपोजिशन, सो आई डोंट अपोज इट सर। Okay. So now I put the motion to the House. The question is that the bill to establish the Nippon Institute of Advanced Sciences, the Nippon Institute of Advanced Sciences Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have, and consequently the motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. The question is that the clause 2 to 4 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have, and consequently clause 2 and 4 stand part of the bill. Clause 5 amendment. There is amendment in clause 5 standing in the name of Sayyid Rafiullah MNA. जी, आगा रफीउल्लाह साहब का खोलें माइक खोलें। थैंक यू जनाब स्पीकर। ये ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है, अमीन उल हक साहब मेंबर साहब बोल रहे हैं, आप बैठ के बात कर लें साइड पे। जी आगा साहब बोलें। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरा इस पे जो शिक नंबर 5 के हवाले से निपुण इदारे के जदीद उलूम 2024 में कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत हाल के शिक 5 में झैली शिक 3 को हस्ब झैल से तब्दील कर दिया जाएगा। दस्तूर साज कॉलेज और तालीमी इदारे कत्ते नज़र इसके कि वो किसी भी नाम से कायम हो और कैसे भी हों, इस बात को यकीनी बनाएं कि मुतालिया के हर शोबे में कुल दाखिला का 25% मुस्तहिक तलबा के लिए मुख्तस किया जाए जो एहलियत के मयार पर पूरा उतरते हैं। इन तलबा इल्मों के इम्तियाज़ जिन्स, ज़ात, मसलक या नस्ल के इम्तियाज़ के बग़ैर मेरिट की बुनियादों पर दाखिला मुफ्त दिया जाएगा। ये शिक ख़ास तौर पर शहीदों के बच्चों, यतीमों और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले बच्चों और माली तौर पर पासमानदा मंजर के तलब इल्म को लागू होगा। जो तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, तरजीही पसमानदा इलाकों में से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। जैसा कि हुकूमत की तरफ से
सराहत की गई है। दाखिला को अमल और इंतखाबात का मेयारात को हुकूमत की तरफ से कायम करदा रहनुमा खतूत और तरीक़ेकार के मुताबिक होंगे। सर आप अगर इजाज़त दें, मैंने बिल मूव किया हुआ ऑलरेडी एक और भी कि इस हाउस से जितनी भी इदारे बनते हैं उसमें 25% उन लोगों को जो मेरिट पर बचे, जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ख़ास तौर से शहीद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, या वो बच्चे जो यतीम हो, या वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो महरूम रह जाते हैं एजुकेशन से, तो उन लोगों के लिए 25% मुख्तस किया जाए। वो तमाम इदारे जो कि HSE से या इस ख़ास तौर से इस मुंतखब अवामी नुमाइंदों के इस हाउस से जो इजाज़त दी जाती है जिन इदारों को, वैसे ही हमारे ऊपर एक काला कलंक है कि इस यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी स्पीकर साहब ने कहा कि यहाँ इदारे जब बनते हैं तो एक इशू बनता है, तो कम से कम वो उसमें 25% ऐसे जो मेरिट पे पूरे उतरते हों लेकिन गरीब, मजबूर और वो लोग जो मैटर करते हैं उनके हक में ये 25% के एडमिशन लाजमी करार दिया जाए। जी मिनिस्टर साहब। सर, ये मैं खराज तहसीन पेश करूँगा आगा रफ़ीउल्लाह साहब को। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे यहाँ जो गुर्बत की लकीर से नीचे अहल बच्चे हैं उनके लिए इवन हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी ख्याल करना होता है, और बहुत सारे जो ये ट्रस्ट हैं टैक्सेशन रजीम की वजह से वो ट्रस्ट के तौर पे रजिस्टर होते हैं और फिर यूनिवर्सिटीज़ कायम होती हैं। लेकिन हमने देखा है कि मेरिट बेस्ड जो ऐसे तलबा हैं जिनको ज़रूरत है, डिज़र्विंग स्टूडेंट्स, उन तक वो इफ़ेक्ट्स उसके या फ्रूट्स नहीं पहुँचते। तो बड़ी अच्छी तजवीज़ है जी, बिल्कुल इसको हिस्सा होना चाहिए इसका, जो अमेंडमेंट पेश की है आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने। जी, तो फिर इसको पुट कर देते हैं जी। Now I put the amendment as moved by Sayyid Rafiullah to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor it may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is passed, is adopted. Now I put the clause 5 to the House. The question is that the clause 5 do stand part of the bill. All those in favor it may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 5 stand part of the bill. Clauses 6 to 47. The question is that the clauses 6 to 47 do stand part of the bill. All those in favor it may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 6 to 47 stand part of the bill. Now I put the schedule to the House. All those in favor it may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the schedule stands part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that the clause 1 preamble short title do stand part of the bill. All those in favor it may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and so the clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. Item number 37, Zahra Wadood Fateh. I would like to move that the bill to establish the Nippon Institute of Advanced Sciences. असद कैसे साहब, गुजारिश है, बिजनेस चल रहा है, ये फिर एक रवायत के उस पे है कि आप 2 मिनट तशरीफ रखें, ये अभी बिजनेस हो जाए उसके बाद पहले आप